بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، آج پاکستان کی ایک تلخ اور دلخراش حقیقت یہ ہے کہ ایٹمی طاقت، 25 کروڑ آبادی کا ملک اور ایک بہترین اور مضبوط فوج اور دفاع رکھنے والا ملک اپنے مقدر کے، اپنے مستقبل کے فیصلے اپنی حدود کے اندر کرنے کی بجائے دبئی، لندن اور واشنگٹن میں کر رہا ہے۔ اس تلخ حقیقت کا اعادہ آج اس وقت ہوا کہ جب اخبارات میں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب کا ایک ایسا ہی بیان چھپا جس میں اس روش کو ہدف تنقید بنایا گیا تھا۔ پھر آج کے ہی اخبار میں شیخ رشید احمد صاحب نے بھی اس پر افسوس کا اظہار کیا کہ ملک کے جو سیاسی مستقبل کے فیصلے ہیں وہ آج بیرونی دنیا میں بیٹھ کر کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے حکمران اتحاد PDM کی جماعتیں دبئی میں اکٹھی ہو رہی ہیں، لندن میں ہیلوں بہانوں سے اکٹھی ہو رہی ہیں اور وہ مستقبل کے کیک کی تقسیم پر بات چیت کر رہی ہیں اور مستقبل کے امکانات پر، شراکت اقتدار پر وہ وہاں بیٹھ کر بات کر رہی ہیں۔ یوں اقتدار کی ایک میراتھن جاری ہے اور کچھ عجب نہ ہوتا کہ اگر یہ میراتھن دبئی کی سڑکوں کی بجائے، لندن کی سڑکوں کی بجائے شاہراہ دستور پر پاکستان کے اندر جاری ہوتی تو یہ ایک فطری سی بات ہوتی، کیونکہ ہر سیاسی جماعت کو اپنے سیاسی مستقبل کے فیصلے کرنے اور اپنی بہبود کے لیے کام کرنے کا حق ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی انداز سے کوئی فیصلہ لے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، لیکن اقتدار کی یہ میراتھن پاکستان سے باہر جاری ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر فیصلہ سازی میں انہیں کوئی رکاوٹ درپیش ہے یا پاکستان ان کے فیصلوں کے لیے محفوظ اور مامون ملک نہیں رہا، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں ملک کے سیاسی نئے نقش سنوارنے یا بگاڑنے کے فیصلوں کے لیے ملک سے باہر کی راہ اختیار کرنا پڑ رہی ہے۔ بالخصوص PDM کی جو حکمران دو جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، اس حوالے سے وہ باہر خوب بیٹھکیں سجا رہے ہیں، باہر محفلیں سجا رہے ہیں اس بات کے لیے کہ پاکستان میں جب حکومت کی میعاد ختم ہوگی اور الیکشن کا بگل بجے گا تو پھر اس کے بعد کس جماعت کی حکمت عملی کیا ہوگی، اور جب اقتدار کی منزل قریب آئے گی اور اقتدار کا ہما کسی سر بیٹھے گا تو پھر اس کے بعد اقتدار کی شراکت اور مل بیٹھ کر معاملات طے کرنے کے جو اصول ہیں وہ کیا ہوں گے۔ آج یہ المناک حقیقت دنیا میں پاکستان کو ایک مذاق بنا رہی ہے۔ یوں بھی پاکستان دنیا میں کوئی رول ماڈل نہیں رہا، کوئی باعث فخر یہاں روایت نظر نہیں آتی، لیکن یہ ایک اور روایت ہے کہ اس اتنے مضبوط پس منظر کے حامل ملک میں کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسا گوشہ عافیت نہیں کہ جہاں اس ملک کے مستقبل کے اور موجودہ حکمران بیٹھ کر کچھ فیصلے کر سکیں آزادی کے ساتھ، اور پھر ان کو ظاہر ہے اگلا مرحلہ ان کی امپلیمنٹیشن کا ہوتا ہے۔ ملک سے باہر بیٹھ کر ملک کے فیصلوں کی اس کیفیت پر مجھے 9/11 کے بعد کا افغانستان یاد آتا ہے کہ جب پوسٹ طالبان منظرنامہ بننے کے لیے وہاں افغانوں نے سر جوڑ لیے، اقوام متحدہ کے زیر اہتمام دوسری انٹرنیشنل ایجنسیز، نیٹو اور امریکہ کے زیر اہتمام، اور پھر جرمنی کے شہر بون میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں افغانستان کے سابق سیاسی رہنما، سابق وار لارڈز، جہادی رہنما، پولیٹیکل انالسٹ
और टेक्नोक्रेट्स दुनिया भर से जमा हुए और सैकड़ों लोग जर्मनी के शहर बोन में बैठकर अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल का नक्शा बुनने लगे। ये लोग अफ़गानिस्तान में यानी तालिबान से गलू खलासी हासिल करने के बाद उस खुशी से के जज्बात से सरशार थे, इनके चेहरे तमतमा रहे थे और ये समझ रहे थे कि एक बला जो उनके गले पड़ी हुई थी उससे उनको गलो खलासी मिल गई, उससे छुटकारा मिल गया और मुस्तकबिल के जो केक हैं उसमें उनका ये हिस्सा होगा। ये तमाम लोग जिनमें इस्लामी जहन के लोग भी थे, उलमा भी थे, दानिश्वर भी थे, मुफक्किर भी थे, प्रोफेसर भी थे, वकला भी थे और जहादी कमांडर भी थे साबिक ये, और माशी माहिरीन भी थे दुनिया के दूसरे मुल्कों में काम करने वाले। इस नुक्ते पर बहस कर रहे थे कि मुस्तकबिल के नक्शे में हमारा क्या रोल होगा और कितना हिस्सा होगा। बोन कॉन्फ्रेंस में जो, चूँकि मैं इस पर उस वक्त भी लिखता रहा और इंटरनेशनल जो अखबारात थे, अमेरिका के अखबारात थे, उनमें जो राइट अप आते थे उसका एक जस्त और उसका खुलासा मैं अपने कॉलमों में उस वक्त भी लिखता रहा। तो इसलिए मुझे आज भी वो सारा सिनेरियो बिल्कुल ज़बानी याद है और पूरी तरह निगाहों में वो मौजूद है। उस बोन कॉन्फ्रेंस में जो कई रोज़ जारी रही, एक नुक्ता मिसिंग था और एक वही हकीकत में ग्राउंड रियलिटी थी उस वक्त की अफ़गानिस्तान की। वो ये थी कि अगर तालिबान इमर्ज कर गए दोबारा, अगर तालिबान वापस आ गए, कोई इस नाखुशगवार नुक्ते पर तवज्जो देने को तैयार नहीं था, न इस पर बहस की गई, बल्कि सिर्फ अफ़गानिस्तान में एक सेटअप कायम करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया और उस पर इत्तफ़ाक़ किया गया। एक ऐसा सेटअप कि जो बहरहाल तालिबान का खला पुर करके हुकूमत करे और फिर उसमें तमाम जो फ़रीक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अपना अपना उस केक में से हिस्सा मिलता चला जाए। लेकिन उन्होंने, चूँकि वो वहाँ खला में बैठकर, जर्मनी में बैठकर वो अफ़गानिस्तान के मुकद्दर का फ़ैसला कर रहे थे, उनमें अक्सर लोग ऐसे थे जो अफ़गानिस्तान से कटे हुए थे और उस मुल्क की ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं समझते थे, इसलिए वो खला में बैठ के ज़मीन के फ़ैसले कर रहे थे। और ज़मीन की सूरत हाल में उस वक्त भी ये सवाल अहम था, हालांकि तालिबान को कुचला जा चुका था, तोरा बोरा में उनकी तबाही कर दी गई थी, उनका इक़्तिदार ख़त्म कर दिया गया था, मुल्ला उमर एक मोटरसाइकिल पर निकल कर भाग खड़े हुए थे। तो इसके बावजूद ये एक नुक्ता मौजूद था कि अगर तालिबान दोबारा आ गए और इंसर्जेंसी दोबारा शुरू हुई और मिलिटेंसी दोबारा शुरू हुई तो क्या होगा। इस नुक्ते पर उन्होंने गौर किए बग़ैर एक इंतज़ामिया खड़ी की जो बैठ गई और फिर उसके साल के अंदर अंदर अफ़गानिस्तान में तालिबान का दोबारा जो है इमर्ज कर गए, वो दोबारा उनका अरूज हुआ और यूं जो बोन कॉन्फ्रेंस में जो इंतज़ाम किया गया था वो एक महदूद एक जजीरे की मखलूक होकर रह गया, एक जजीरे में मुक़य्यद और महसूर होकर रह गया और बाहर की जो दुनिया थी उसमें तालिबान छा गए पूरी तरह। तो आज की जो पाकिस्तान की बोन कॉन्फ्रेंस है, पाकिस्तान के टेक्नोक्रेट्स, हुक्मरान और ताकत के शनासा शनावर और ताकत पसंद जो शख्सियात हैं वो बैठकर जब मुस्तकबिल का नक्शा बुन रहे हैं, मुस्तकबिल की सूरत गरी कर रहे हैं, तो वो उन्हीं अफ़गानिस्तान के कमांडरों की तरह, उन्हीं लीडरों की तरह, उन्हीं दानिश्वरों की तरह जो बोन की छत तले जमा थे, उस हाल में जमा थे, ये एक बुनियादी नुक्ते को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि अगर इमरान खान के मामलात ठीक हो गए, अगर इमरान खान की मकबूलियत को मैनेज ना किया गया, अगर इमरान खान की मकबूलियत पोलिंग बूथ पर भी मौजूद रही तो क्या होगा। यानी वो हवा में बैठकर ओहदे तो तकसीम कर रहे हैं और वहाँ बैठकर वो मुस्तकबिल का खाका भी बुन रहे हैं, नक्शा भी तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी ग्राउंड रियलिटी ये है कि इमरान खान बदस्तूर मकबूल हैं। पंजाब के चक्कू में, गोठू में और चौपालों में हर जगह उनका सिक्का चलता है। KPK में जो झंडा लगाओ मुहिम है उसने भी ये चीज़ साबित की और यूं भी KPK में भी उनका
पूरी तरह एक मकबूलियत बहाल और बरकरार है। पंजाब में उनकी पार्टी में तोड़ फोड़ की गई है, लेकिन बहरहाल वोटर का जो रुझान है वो अमूमी तौर पर उसी तरफ है। और यूं छोटे से छोटा सर्वे या बड़े से बड़ा सर्वे हो तो इस वक्त भी इमरान खान मकबूलियत में सबसे ऊपर हैं। और ये इतनी मकबूलियत है, ये इतना फ़र्क है पीडीएम की जमातों में और इमरान खान के दरमियान कि इसको पोलिंग बूथ पर यकायक आप 6 घंटे में मैनेज नहीं कर सकते। अगर इसको आप करेंगे तो उससे तो बेहतर है कि इलेक्शन के बगैर ही आप नामजदगियां करके जो हुकूमत है वो बना लें और चला लें। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे अफ़गानिस्तान में बॉन कॉन्फ्रेंस लोया जिरगा के नतीजे में आई थी, इसी तरह एक जिरगा टाइप करके आप भी हुकूमत बना सकते हैं अगली आने वाले दिनों के लिए। फिर इलेक्शन का तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये वो हकीकत है कि जो इस बात का तकाजा करती है कि कोई रास्ता, दरमियानी रास्ता निकाला जाए। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के इक़्तिदार और इम्कानात में ऐसा रास्ता निकाला जाए जो पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशा, मौजूदा ख्वाहिशात का, आने वाले कल ये ख्वाहिशात क्या होती हैं हमें इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मौजूदा जो ख्वाहिशात हैं उनके मुताबिक हो और कोई ऐसा रास्ता निकले कि जो आज की पाकिस्तान की सियासत की ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक हो। बसूरत दीगर खलाओं में किए जाने वाले फ़ैसले ज़मीन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते और उनका वही हशर होता है कि जो बॉन कॉन्फ्रेंस के फ़ैसलों का बाद में आने वाले दिनों और ज़मानों में अफ़गानिस्तान में होता रहा। सो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।